سلام۔ الحمدللہ، ہم ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز اسلام کو ڈھا دینے والے 10 امور کے بارے میں ہے، جس میں ہم ان عقائد اور اعمال پر بات کریں گے جو کسی بھی مسلمان کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ لا علمی میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس سیریز کا مقصد ان امور کو واضح کرنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا تجزیہ پیش کرنا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ایمان کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ اعمال ہمارے روزمرہ کے عقائد اور رویوں میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جاننے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز اسلام کو ڈھا دینے والے 10 امور پر مبنی ہے، جہاں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان خطرناک اعمال اور عقائد پر گفتگو کریں گے جو اسلام کے بنیادی عقیدے کے منافی ہیں۔ ہر قسط میں ہم ایک ایسے عقیدے عمل پر بات کریں گے جو کسی شخص کے ایمان کو برباد کر سکتا ہے، اور یہ جانیں گے کہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں لا علمی میں آپ کسی غلط عقیدے عمل کا شکار تو نہیں، تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے۔ آج کی پہلی قسط میں ہم جانیں گے کہ ان 10 امور کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں کیوں ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم اپنی اسلام کو ڈھا دینے والے 10 امور سیریز کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی 2 اقساط میں ہم نے نواقض الاسلام کے بنیادی تصور اور شرک کے بارے میں تفصیل سے سیکھا۔ ہم نے جانا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر کیا ہوتا ہے، ایمان کو کیسے برباد کرتا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا وعیدائی ہے۔ آج ہم تیسرے ناقص پر بات کریں گے، یعنی عبادت میں واسطے بنانے کے بارے میں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے انہیں کسی وسیلے یا درمیانے شخص کی ضرورت ہے۔ وہ ولیوں، پیروں یا بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ لیکن کیا واقعی اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ آج ہم یہی جاننے والے ہیں۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ واقع ہونے والا اور سب سے زیادہ خطرناک اسلام کا مخالف اور ناقص فعل یہی ہے، کیونکہ اسلام کے بہت سے نام لیواؤں نے جو اسلام کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اپنے اور اپنے رب کے درمیان بہت سے وسیلے اور ذریعے بنا کر رکھے ہیں، جن کو وہ مشکلات و مصائب سے نجات کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے پکارتے ہیں۔ ایسے لوگ باجماع المسلمین کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ لوگ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں۔ لیکن قبروں کے پجاری اس بات کے انکاری ہیں۔ انہوں نے اپنے بہت سے وسیلے بنا کر رکھے ہیں جنہیں وہ نقصان و تکلیف سے بچنے اور فوائد کے حصول کے لیے پکارتے ہیں، اور اس پکارنے کو عبادت بنا لیا گیا ہے، گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، معاذ اللہ۔ اور جو لوگ ان کے پاس اس شرک کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے بیزاری کا اظہار اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر اولیاء اور صالحین کے گستاخ ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے فاسد خیالات و نظریات کی وجہ سے براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے کوئی وسیلہ اور زینہ بنانا ضروری ہے، جیسا کہ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جا کر براہ راست سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان بادشاہوں سے بڑھ کر ہے، اس کو براہ راست کیسے پکارا جائے؟ جبکہ وہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی شان و گستاخ کر رہے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ اس طرح کہہ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی کمزور و ناتواں مخلوق سے مشابہ و مثل کر دیا ہے، اور ایسا کرنا اسلام کے سخت منافی ہے۔ کیا اللہ دنیا کے ان بادشاہوں کی طرح ہے؟ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں جن سے ان کے عقائد کو باطل کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص ہدایت طلب کرتے ہوئے اور حق بات کو مانتے ہوئے قرآن پر غور و فکر کرے گا تو اس سے یہ مسئلہ صحیح طور پر سمجھ آئے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام موجودہ دور میں کتنا تنہا ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر لوگ دین رب العالمین سے جاہل ہیں۔ اسی مضمون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 22 سے 23 میں فرمایا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن زَحِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے،
اور نہ उनमें कोई हिस्सा है, ना उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। शफात की दरख्वास्त भी उसके पास कुछ फ़ायदा नहीं देगी सिवाय उनके जिनको वो खुद इजाज़त मरहमत फरमाएगा। मज़ीद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की आयत नंबर 56 और 57 में इरशाद फरमाया है, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कशफ़ दुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइका अल्लज़ीना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबहु। इन्हें पुकारो जिनको तुम अल्लाह के अलावा कुछ समझते हो, लेकिन याद रखो ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हो ना बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो पुकारे जाने वाले अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू में रहते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा नज़दीक हो जाए, खुद उसकी रहमत से उम्मीद रखते हैं और उनके अज़ाब से खौफज़दा रहते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहिए कि अच्छा ये तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इसके नुकसान को हटा सकेंगे, या अल्लाह मुझ पर रहमत का इरादा करे तो क्या ये इस रहमत को रोक सकते हैं। आप कहते हैं मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, तवक्कुल करने वाला उसी पर तवक्कुल करते हैं। कुरान करीम की अक्सर आयात इस बात की दलालत करती हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास होकर की जाए और अल्लाह और मखलूक के दरमियान किसी को वास्ता या वसीला ना बनाया जाए, क्योंकि फरमान इलाही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को, जब भी मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी हिदायत का बायस है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात कही गई कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें और अल्लाह चाहे। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने मुझे अल्लाह ताला के बराबर बना दिया है। तुम्हें ये कहना चाहिए कि जो अल्लाह वहदहु ला शरीक चाहे, क्योंकि इस कहने वाले की बात से वाज़ेह हो रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल बराबर हैं। हालांकि अल्लाह ताला अकेला ही माबूद है, उसके साथ अल्लाह की मखलूक में से किसी को बराबर नहीं करना चाहिए। नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि ए इब्ने अब्बास, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम उसके दीन की हिफाजत करो, तुम अल्लाह को अपने रूबरू पाओगे। तुम अगर मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो, मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। जान रखो अगर सारी दुनिया जमा होकर भी तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, और अगर सब जमा होकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें तो सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने तकदीर लिखने वाले कलमों को उठा लिया और लोहे महफूज को खुश कर दिया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं, मोमिन को इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का रब और मालिक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने असबाब और ज़राए पैदा फरमाए हैं, जैसा कि बारिश को पौधों के उगने का सबब बनाया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 164 में इरशाद फरमाया है, अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्ज़ बअदा मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन। आसमान से पानी उतारकर मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म की जानवरों को फैला देना अल्लाह ताला का काम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने असबाब और ज़राए की पैदाइश में सूरज और चाँद की तख्लीक भी की है। शिफात और दुआ से जो फ़वाइद मिलते हैं उनका सबब शिफात और दुआ को बनाया है। मुसलमान मैयत के लिए रहमत इलाही का सबब नमाज जनाजा है। मैयत के साथ साथ नमाज जनाजा पढ़ने वालों को भी सवाब मिलता है, लेकिन इन असबाब और मुसब्बब के मुतालिक दरअसल 3 अमूर का इल्म होना चाहिए। पहला ये कि असबाब की बहस में सबसे पहली बात काबिल गौर ये है कि असबाब मुस्तकिल तौर पर मकसूद और मतलूब नहीं होते, बल्कि ज़रूरी होता है कि कोई दूसरा असबाब भी मौजूद हो।
इन असबाब के साथ कुछ मवाने और रुकावट भी होती है। किसी रुकावट की वजह से अल्लाह ताला सबब को मुकम्मल ना करे तो मकसद हासिल नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहता है वही होता है, अगरचे लोग ना चाहें। इसी तरह जो लोग चाहें अल्लाह ताला के चाहे बगैर नहीं हो सकता। मुराद ये कि नमाज जनाजा मैयत के लिए रहमत का सबब है। किसी मानी की वजह से मैयत को रहमत नहीं मिलती, इसलिए ज़रूरी नहीं कि सबब मौजूद हो तो उसका नतीजा भी मौजूद हो। दूसरा ये कि बगैर इल्म के किसी चीज़ के मुतालिक ये एतकाद नहीं करना चाहिए कि चीज़ सबब बन रही है। जो शख्स खिलाफ शरीयत किसी चीज़ को सबब बनाए तो उसका ये फ़िल गलत होगा। मसलन ये ख्याल करना कि नज़र मांगने से बलाओं और मुसीबतों को टाला जा सकता है या खुशियों को हासिल किया जा सकता है, तो ये ख्याल सही नहीं है, क्योंकि नज़र मांगना कोई सबब नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र मांगने से मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नज़र मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसके ज़रिए से मुखील शख्स से कुछ माल निकाला जाता है। तीसरा ये कि शरीयत के हुक्म के बगैर दीनी अमाल में से किसी चीज़ को सबब बनाना जायज़ नहीं, क्योंकि तमाम इबादत तौफीकी है, यानी तमाम इबादत शरीयत की तरफ से मुकर्रर करदा है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं की जा सकती। लिहाजा किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो अल्लाह ताला के साथ शिरक करे और गैर अल्लाह को पुकारे, अगरचे उसका गुमान हो कि ऐसा करना बाद इग़राज़ व मकासद के लिए फ़ायदा मंद है। इसी तरह बिदअती तौर तरीक़ों और खिलाफ शरीयत तरीक़ों से इबादत करना जायज़ नहीं है और खिलाफ शरीयत तरीक़ों से इबादत नहीं करनी चाहिए, अगरचे ऐसी गलत इबादत करने वाले का ख्याल या एतकाद हो कि ऐसा करना फ़ायदे का सबब बन रहा है। शिरक करने की वजह से शैतान बाज़ औक़ात इंसान की मदद भी करता है। इसी तरह कुफ्र और फस्क व फजूर से भी इंसान के बाज़ काम पूरे होते हैं। ज़ाहिर है ये असबाब गलत है, क्योंकि इन असबाब से जो बिगाड़ पैदा होता है वो फ़ायदे से कहीं बढ़कर है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मकसद भी यही है कि अच्छे काम और मसाले की तकमील हो, फसाद और बिगाड़ पैदा करने वाले तमाम काम ख़त्म हो जाए। लिहाजा जिस काम की करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जिससे मना किया गया इसमें बिगाड़ और नुकसान वाज़ेह है। मुशरिकीन कदीम हो या जदीद शफ़ाअतों से वाबस्ता होकर शिर्क अकबर में मुब्तला हो चुके हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर क़यामत के दिन ऐसी किसी भी किस्म की शफ़ाअत की नफ़ी की है जिसका ये मुशरिकीन अक़ीदा और गुमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 254 में ये फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च अल्लाह की राह में करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई तिजारत काम आएगी, न दोस्ती और न शफात, और काफिर ही जालिम है। सूरह नाम की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम कुरान के जरिए से इन लोगों को डराओ जो इस बात से डरते हैं कि वो अपने परवरदिगार की तरफ उठाए जाएंगे और उसके सिवा उनका कोई कारसाज और सिफारिश करने वाला नहीं है, ताकि वो परहेजगारी करे। इन आयात से मालूम होता है कि गैर अल्लाह से तलब की गई सिफारिश की नफ़ी की गई है। इसके अलावा अल्लाह ताला से तलब करने वाली सिफारिश कबूल होगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कौन है जो इसके पास सिफारिश करे। और एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 28 में फरमाया है, वला यशफ़अून इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खश्यतिही मुशफ़िक़ून, ये फरिश्ते किसी की सिफारिश नहीं करते अलावा इनके जिनसे अल्लाह ताला खुश हो, वो तो खुद हैबत इलाही से लर्ज़ा व तरसा है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुलिल्लाहुम्मा शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कह दो कि सब शिफाअत अल्लाह ही के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी के लिए है, फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सूरह नजम की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकती मगर अल्लाह ताला की इजाज़त के बाद, और इसके लिए सिर्फ जिसको अल्लाह चाहे और पसंद फरमाए।
इन आयात से मालूम हुआ कि सिफारिश की दो अक़साम हैं। एक मनफी शिफात जो गैर अल्लाह से तलब की जाए और दूसरी वो शिफात जो मुस्बत है, यानी जो अल्लाह ताला से तलब की जाए, और ये शिफात सिर्फ अहले तौहीद व इखलास के लिए होगी। शिफात के बाब में दो बातों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि सिफारिश करने वाला अल्लाह ताला की इजाज़त के बाद ही कोई सिफारिश कर सकेगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में, कौन शख्स है जो अल्लाह की इजाज़त के बगैर शिफात करेगा। दूसरा ये कि सिफारिश की इजाज़त अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए देगा जिनसे अल्लाह राज़ी होगा और पसंद फरमाएगा, जैसे कि सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फरिश्ते किसी की सिफारिश नहीं करते अलावा इनके जिनके लिए अल्लाह ताला पसंद फरमाए। जबकि मुशरिकों के अमाल कूड़ा क्रिकेट की मानन ज़ाया हो जाएंगे, उनके लिए कोई शिफात ना होगी, उनकी ख्वाहिशात के बरक्स कोई सिफारिश उनको मुयसर ना आएगा, क्योंकि जो शख्स वक्त से पहले पहले कोई तौहीद पर अमल किए बगैर अपनी शिफात चाहता है तो उसका अंजाम महरूमी के सिवा क्या हो सकता है।